भाई गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वी आर बैक एंड काम काज शुरू करना है आज का। तो आज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दिन है। हर सैटरडे जेई का लेक्चर होता है, नीट का लेक्चर होता है। तो लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू चेक आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी हैव ऑलरेडी डन दिस in the normal course of events, and now we are going to look at it from the JE point of view. So the most important thing, the first thing is magnetic flux. The most important single physical quantity in this chapter is magnetic flux, and we already know magnetic flux is the product of magnetic field B bar and the area vector A bar. So phi is B bar dot A bar, the scalar product, the dot product of magnetic field and the area vector, and this is going to be written as BA cos theta. I am sincerely hoping that you know that theta is the angle between the magnetic field and the area vector. So here theta is the angle between B bar and area vector A bar. Area vector A bar is always perpendicular to the surface. If this is the surface, area vector ऐसा होगा. So this is the angle between B bar and A bar. Also, magnetic flux is a scalar quantity, very much like its brother electric flux, and its SI unit is Tesla. Now magnetic field is in Tesla, area is in Tesla meter square, or better known as Weber. So 1 Weber is 1 Tesla meter square. So many a times that is the prime reason why they write Tesla as Weber per meter square, or 1 Tesla is 1 Weber per meter square. अच्छा, Weber is a very big unit. उसका छोटा unit भी है. 1 Weber is 10 raised to 8 Maxwell. Okay, so might as well remember this tidbit. 1 Weber is 10 raised to 8 Maxwell. आगे बढ़ते हैं. For a number of small areas, if we were to find total flux, then total flux phi would be the summation of B bar dot delta A bar over all the areas. And if the number of areas is very large, you can write this as an integral also, integral B bar dot dA bar. Well, I hope that you remember Gauss's law for magnetism from last chapter. It says integral B bar dot dA bar over a closed loop is 0. This is not a closed loop we are talking about. This is simply an area, a particular surface we are talking about. So this is the idea of magnetic flux. And यहाँ से शुरू हुआ पूरा कारवा Faraday का और सबका. Faraday did a series of experiments जिससे ये पता चला कि whenever the magnetic flux linked with a coil changes, EMF and current is induced. इसे induced EMF या induced current इसलिए कहते हैं because this EMF or current has been made available without any source. There is no battery anywhere which is providing this current. ये current अपने आप प्रकट हुआ है, and that is the reason why they call it induced current. So let me write that idea for you, and then we go to Faraday's law. फिर Lenz's law भी चेक करते हैं. So Faraday's law says that, पहले कंक्लूजन देखते हैं फिर उसका लॉ देखते हैं. He said that whenever the magnetic flux linked with a coil changes, EMF and current, of course, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जब भी EMF हो करंट हो. नहीं, बैटरी तुमने देखा है अगर अपने पैक में होती है तो करंट फ्लो नहीं करता. तो EMF तो इंड्यूस हुआ, is induced. So this is the idea. And according to Faraday, induced EMF, average induced EMF is equal to the change in magnetic flux upon time taken. So average induced EMF, average epsilon, is minus delta phi by delta t. If you want to call flux as phi m, be my guest. And
अगर आपके पास n टर्न्स वाला कॉइल है तो एंड फ्लक्स phi is the flux with each turn, then you can write it minus n delta phi by delta t. I have introduced minus sign here as a special honor for Lenz's law. Negative sign is due to Lenz's law and is going to indicate direction, as we all know. This is your average induced EMF. Taking limit delta t tending to 0, we get instantaneous induced EMF as ये स्क्वायर ब्रैकेट ट्राइंगल ब्रैकेट हट जाएगा तो एप्सिलॉन इज माइनस एन डी फाई बाय डी टी. ये हम से फॉर्मेलिटी के लिए लगा रहा हूं, इसको जरूरत नहीं है वैसे, बट लगा देना अच्छा होता है. ओके, एंड अगर कोई एन टर्न्स नहीं है तो यहां पे एन की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, फिर इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट I by Ohm's law is epsilon over R. So either you write this term, you write that term, सारे रास्ते गॉड के पास ही जा रहे हैं. And I'm going to neglect the negative sign here. N delta phi by R delta T. This is going to be the equation for induced current. And an important quantity is induced charge. So induced charge, you know, charge का equation हमने chapter 3 में से देखा था. Alright, I was delta Q by delta T, that stuff. So I'm going to take this off now. You might as well have a look for it for a second. And induced charge का equation आ रहा है. I'm going to write this as now. Current I is delta Q by delta T. And I'm going to look at equation 3, I'm going to look at equation 4. So comparing 3 and 4, क्या मिल जाएगा? Delta Q by delta T is how much? N by R delta phi by delta T. But ladies and gentlemen, remember this is flux phi and this is Q. Delta T goes away, and therefore the equation for induced charge is delta Q is N delta phi by R. And as you can very well see, यहाँ पे टाइम का फैक्टर आता ही नहीं है. सो इंड्यूस्ड चार्ज के इक्वेशन में टाइम का फैक्टर is not there. It is independent of time. So these are the ideas that we saw in the first topic, and let us solve a couple of sums based on this idea. तो आगे बढ़ जाएंगे. Just have a look. इससे पहले कि मैं उड़ा दूं, I'm looking at SP number 1. The sums that I'm solving are from the Arihant's Master Resource Book in Physics by D.B. Singh. So, Singh Saab, the great. SP1, I hope you've opened your books. And if you don't have the book near you, you might as well get it. If you want to do it now. So, SP, sample problem 1. What does it say? It says, before I do sample problem number 1, I need to tell you about Lenz's law, but let me do sample problem number 1, फिर कर लेते हैं. Magnetic flux in a coil is given as phi is 10t square plus phi t plus 1, very typical problem, and this flux is given in milliweber. Okay, this is milliweber. EMF induced in 5 seconds, t is equal to 5 seconds is. Now, let's look at it for a moment. By induced EMF का equation we know. Induced EMF epsilon is minus d phi by dt. N turns का कोई जिक्र नहीं है, तो I'm not going to take that. So this is minus d by dt of 10t square plus phi t plus 1. Let us cut a long story short. 10 बाहर आ जाएगा, d by dt t square. 5 बाहर आ जाएगा, d by dt of t. And this is d by dt of 1. Well, d by dt t square 2t, d by dt t is 1, and d by dt of constant is 0, which brings me to my final expression, 10 into 2t plus 5 into 1 plus this is 0. My God, it's a shaky situation. Okay. It should shake. Okay. Now it's right.
When it's right, it's right. So this is minus 20t plus 5. तो ये मेरा इक्वेशन आ गया एप्सिलॉन का. And now I'm going to put time as 5 seconds. Don't forget this is milli, milliweber. At t equal to 5 seconds. So epsilon will be minus, t की जगह मैं 5 रख रहा हूँ, 20 into 5 plus 5. Now this is 100 plus 5. This is minus 105 millivolt. Ladies and gentlemen, I hope you haven't forgotten that this was milliweber, 10 raised to minus 3. So putting the value minus 105 into 10 raised to minus 3, that is minus 0.105 volt, and neglecting the negative sign. I don't know whether they've neglected it or not, but this is one practice that is very important. You need to neglect the negative sign. So epsilon is 0.105 volt. Is that the answer? Yeah, this is the answer. Okay, so this was SP number 1, and let's talk about Lenz's law. And rather than talk about it, let's look at it. So Lenz ने एक सिंपल बात से ये कहा था कि the induced current produces a magnetic field which tends to oppose the cause that has produced it. तो in short, in a very very simple story, induced current जो produce होता है किसी coil में या किसी भी चीज में, it will be in such a direction that it will oppose the magnetic flux, the change in magnetic flux that is producing it. So that was Lenz's law. The induced EMF. You only need to write Lenz's law. No, you already know it. इसको करने का तरीका बहुत जरूरी है. You know, Lenz's law तो समझ में आ जाता है कि oppose करना, that is the most important idea. It should oppose the induced current producing the magnetic field, should oppose the magnetic flux that produces it, no doubt. But सर करे कैसे? ये हमने काफी विस्तार में बोर्ड में के लेक्चर में लिया था, but just once more, let's take it. Suppose I have this coil and I'm bringing a magnet near it. This is north, this is south, and I'm bringing the magnet near it. Okay, so it's like this. This is my coil and this is my magnet, and I'm going to take it near it. This is the north pole. The first step number 1, determine the direction of B bar. Now you already know magnetic field for a magnet is from south to north. So I'll put the direction of B bar in red. This is my B bar. So if you are looking, ये magnet actually यहाँ है. I couldn't draw a 3-dimensional diagram, could I? So इस तरफ जा रहा है magnetic field. So in this direction, I am going to take the area vector also in that direction. So point number 2, choose direction of area vector A bar such that B bar and A bar are between 0 and 90, such that angle between B bar and A bar is less than 90. तो दोनों का डायरेक्शन वही हुआ. So उस डायरेक्शन में the combined direction, so the direction of B bar or A bar is the direction of increasing flux. इतना तक कर लेते हैं. So as I said, B bar अंदर जा रहा है, मैंने A bar को भी अंदर चूज किया. So my flux is increasing inside. Okay, यहां तक मैंने कर लिया. अंदर का डायरेक्शन is my direction of increasing flux. अब सबसे पहले फाइंड आउट करो क्या फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट डायरेक्शन इज गुड, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो पलटी मरवा दो. एज यू कैन सी, मैग्नेट इज अप्रोचिंग द कॉइल. Magnet is approaching the coil, field is increasing. Field is increasing, so flux is increasing. We are good. So my fourth point would be find out if flux is increasing or decreasing. This is ekdam breakup of various steps. If decreasing, reverse direction. And finally, my last step, by Lenz's law, reverse direction again. By Lenz's law, reverse direction. ये final step तो करना ही करना. Reverse direction again. This is the direction of the magnetic field
of the induced current. So let me show you. ये लास्ट स्टेप करके देखता हूं. बी बार अंदर जा रहा था, ए बार भी अंदर चूज किया, तो अंदर जाने वाला डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फ्लक्स. एंड एज आई कैन सी मैग्नेट अप्रोच कर रहा है तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, माय डायरेक्शन इज गुड. तो मुझे फोर्थ स्टेप मेरा सही हो गया. अब बाय लेंज़ेस लॉ रिवर्स डायरेक्शन, तो मेरा डायरेक्शन रिवर्स हो गया. और ये जो उंगलियां घूम रही हैं, दिस विल शो मी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. सो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. कैन यू सी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो रहा है in this particular coil. And if they ask me कौन सा पोल प्रोड्यूस हो रहा है, I might as well tell them anti-clockwise is north. Alright, so just have a look. ये चारों पांचों स्टेप देख लीजिए. Okay, so इसको यूज भी करेंगे आज. एक आध न्यूमेरिकल तो करना ही है इसका. तो लेंज़ेस लॉ का अगर कोई न्यूमेरिकल मेरे पास पड़ा है तो मैं देख लेता हूं क्या कैन आई डू इट और कैन आई नॉट. I think एक आध पड़ा है मेरे पास. Yeah, I got SP6 on me right now. And what does SP6 say? SP6 says a circular loop is placed near a current carrying conductor as shown. This is my current carrying conductor as they've shown me. Current going downwards. I is decreasing with time. Okay. Find the direction of induced current in the if the current in the wire is decreasing. I need to find the direction of induced current in this coil. All right. ओके सर जी, भाई शुरू करिए हुने. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस कॉइल में इस वायर में करंट जा रहा है. एंड अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वायर के करंट को राइट हैंड रूल लगाऊंगा. एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद दिस कॉइल. सो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड, माय थंब इज गोइंग डाउन, देन द फिंगर्स विल गो इनसाइड. सो माय फर्स्ट शॉट इज दैट बी बार इज गोइंग इनसाइड. सो फर्स्ट शॉट, बी बार goes inside. Normally you don't need to write these steps. आपके लिए steps लिख रहा हूं. Let us choose A bar also inside. A bar chosen as going inside. तो भाई एकदम सिंपल बात, B बार भी अंदर, A बार भी अंदर. So flux increases inside. So flux increases in the inwards direction. Okay. अब भाई चेक करो, फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सर करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो फील्ड डिक्रीज होगा, फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग. सो बट फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सो रिवर्स डायरेक्शन. भाई पहले रिवर्स कर लेने दो. अंदर था ना, अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो बाहर आ गया. एंड अब फाइनली अकॉर्डिंग टू लेंस फिर से पलटी मारो, अंदर मिला मुझे. सो फाइनली मेरा फोर्थ स्टेप, अकॉर्डिंग टू लेंस reverse direction again. This is the direction of induced current. Let me check out all steps. पहले बी बार अंदर जा रहा था, ए बार भी अंदर चूज किया हमने, फ्लक्स अंदर की ओर इंक्रीज हो रहा है. फिर चेक किया फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमने रिवर्स किया डायरेक्शन. और अब फाइनली लेंस लॉ की वजह से रिवर्स किया. ये मेरा फाइनल डायरेक्शन है. दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ करंट. उंगली ऐसी जा रही थी ना, वो ये कौन सा डायरेक्शन है? सो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. कैन यू सी डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज क्लॉकवाइज. बरोबर है. तो मस्त आइटम है एकदम. जस्ट चेक करो. मैं जा रहा हूं एसपी नंबर 3 पे, आप लोग चले मेरे साथ. एसपी नंबर 3 क्या कह रहा है? लेट अस सी. एसपी नंबर 3, व्हाट इज इट सेइंग? पहले डेटा वेटा लिख लेते हैं जी. SP3. ओके, क्या डेटा कह रहा है? अ स्क्वायर लूप ACDE. ओके, डायग्राम भी दिया हुआ है. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है अपना. आज से ये मैग्नेटिक फील्ड अपना है. भाई मैग्नेटिक फील्ड तो सबका होता है यार. ओके, और एक कॉइल है ACDE नामक. कहां है? ये है कॉइल.
सर स्क्वायर कॉइल लिखा है, स्क्वायर कॉइल लिखा है यार, आप भी कमाल करते हो सर जी। स्क्वायर की जगह रेक्टेंगुलरिश बना दिया आपने, लो स्क्वायर बना दिया यार, आपके लिए जान हाजिर है यार, बस मांगना नहीं। ओके, ये ऐसा ऐसा घूमने वाला है, ऐसा बोला है मुझे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अरे सर गलत गलत लिख रहे हो, ये डी है, ये सी है, अजीबो गरीब है। ए सी, अच्छा ए सी डी ई है, ये ई फॉर एलिफेंट। ओके, तो फिर से डेटा लिखने के लिए आ गए। स्क्वायर लूप ए सी डी ऑफ एरिया दिया हुआ है 20 सेंटी स्क्वायर, तो यू माइट एज वेल कन्वर्ट इट टू 20 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड रेजिस्टेंस 5 ohm। ओके, is rotated in a magnetic field B is equal to 2 Tesla through 180 degrees। अच्छा जी, ओके, इन 0.01 सेकेंड, डेल्टा टी जो है 0.01 सेकेंड है, एंड बी में डेल्टा टी 0.02 सेकेंड, थ्रू 180 लिख देता हूँ, 180 डिग्रीज। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, करंट चाहिए, एंड इंड्यूस्ड चार्ज। हाँ, ओकी डोकी। अच्छा, सर्वप्रथम कुछ भी करने से पहले सिर्फ टाइम ही चेंज हो रहा है ना, बाकी कुछ तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा है, सीन आपको दिखा दूं, ये ऐसा था, ऐसा ए सी डी, और इसको ऐसे रोटेट किया गया, यू सी दिस, पहले ऐसा था और अब उसको ये एक्सिस के थ्रू रोटेट किया, यू कैन सी दिस द एक्सिस, और उन्होंने ऐसे रोटेट कर दिया, टड़ांग। अच्छा, सपोजिटली पहले सिचुएशन में ये इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, मतलब मैंने चूज किया इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, तो पहला एंगल कितना हुआ, बी बार भी अंदर, ए बार भी अंदर, एंगल कितना हुआ 0। फिर जब घूम के यो आ गया तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ गया, बी बार अंदर है, सो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, बी बार अंदर, अब एंगल कितना हो गया 180। सो पहले मैं इतना काम कर लेता हूं, पहले इतना खत्म कर ले कि ये पुस्तिका, जय हो। लाइफ में जगह की तंगी बहुत है। अच्छा, इनिशियली ए बार इज चोजन इनसाइड, so B bar and A bar have angle theta 1 is 0 degree। Finally अब घूम गया तो theta 2 is 180 degree। Now magnetic flux, n number of turns तो है नहीं, तो phi is BA cos theta, तो phi 1 will be BA cos theta 1, phi 2 will be BA cos theta 2। So change in flux, change in magnetic flux, क्योंकि अपने को change in magnetic flux तो फाइंड करना ही है, तो डेल्टा phi is phi 2 minus phi 1, BA दोनों में कॉमन है, तो cos theta 2 minus cos theta 1। एक ही इक्वेशन में लगे, या तो काम हो जाए तो क्या बुरा है। तो B कितना है 2 टेस्ला है ना, एरिया 20 सेंटी स्क्वायर, सो 20 into 10 raised to -4, theta 2 is how much, 180, so cos 180 degree minus cos 0 degree। चेकआउट करें, so 22s are 40 into 10 raised to -4, cos 180 -1, cos 0 1, so -1 is -2, so -2 into 40 is -80 into 10 raised to -4 Weber। मुझे चेंज इन फ्लक्स मिल चुका है, तो अब नाउ आई शैल स्टार्ट माय बिजनेस। सो पॉइंट ए, डेल्टा टी इज 180 डिग्री, नहीं 0.01 सेकेंड। ओके, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन इज माइनस डेल्टा फाई, नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं ना, कोई बात ही नहीं है। ओके, बाय डेल्टा टी, सो दैट्स माइनस ऑफ -80 into 10 raised to -4 ओवर 0.01 को क्या मैं 10 raised to -2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख ही सकता हूं। माइनस माइनस कट जाना है, -4 + 2 is -2, तो 80 into 10 raised to -2 is 0.8। मेरा आंसर
आ चुका है 0.8 वोल्ट। एंड अब नाउ आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। रेजिस्टेंस 5 ओम है, याद रखिएगा। डेल्टा टी दूसरा वाला 0.02 सेकेंड है, वो भी याद रखिएगा। नहीं तो मैं तो हुई ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहला वाला आ गया। अब इंड्यूस्ड करंट I is एप्सिलॉन बाय आर। भाई एप्सिलॉन कितना है? 0.8 by 5 by 0.8 by 5। आई थिंक इट शुड बी 0.16 इज दैट द आंसर? होगा यार, चेक कर सकते हैं, करना हो तो। 0.16 एम्पियर। एंड इससे पहले कि आंसर चेक करें, सब काम खत्म कर लेते हैं। एंड इंड्यूस्ड चार्ज, you know, I is delta Q by delta T, so delta Q is I delta T। तो लगे हाथों डेल्टा टी कितना है? 0.01, मतलब 10⁻²। तो आपको किस तरह लिखना है? 0.016 या 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम? आई थिंक दैट वुड सफाइस। 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। आप इसको भी मिली एम्पियर में लिख ही सकते थे, बट कोई जरूरत नहीं है, तो 0.16 इज गुड। लेट अस चेक वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। यस, इट्स करेक्ट। एंड सेकंड वाला भी कर ही लेते साथ है। बी वाला, ये अगर पहला वाला आ गया तो दूसरा वाला भी आ ही जाएगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेट्स डू इट इन अ जिफी। माइनस डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी। बात तो वही है, 80 इंटू 10⁻⁴ में माइनस माइनस काट चुका हूं। 0.02, सो 2 इंटू 10⁻²। सो 80 by 2 इज 40, -4 + 2 इज -2। सो आंसर आ चुका है 0.4 वोल्ट। टाइम चेंज हो गया ना, टाइम डबल हो गया, तो ईएमएफ आधा हो गया। तो करंट I is epsilon by R, that's 0.4 by 5 by 0.4 by 5 is 0.8 by 10, and 0.8 by 10 would be 0.08। so कहाँ गया तू, कहाँ गया? so I 0.08 एम्पियर। एंड लास्टली डेल्टा क्यू, या ये वाला कॉलम उड़ा देते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज, डेल्टा क्यू इज आई डेल्टा टी। भाई इन अ वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स आप देखेंगे कि ये जो तुम्हारा आंसर है ना, योर आंसर इज नॉट, द डेल्टा क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। दैट इज द प्राइम रीजन वाई जो तुम्हारा डेल्टा क्यू यहां मिला था, वैसा ही डेल्टा क्यू तुमको यहीं मिलेगा। सो दिस 8 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻², that's 16 into 10⁻⁴, that's 1.6 into 10⁻³ again, the very same answer that you had obtained। बेचारे को काट डाला 3 को। Here सेम आइडिया। तो ईएमएफ चेंज हो गया, करंट चेंज हो गया, बट डेल्टा क्यू हैज रिमेन्ड सेम बिकॉज डेल्टा क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। डेल्टा क्यू डिपेंड्स ओनली ऑन डेल्टा फाई एंड रेजिस्टेंस आर। तो दिस वाज द आइडिया। डेल्टा फाई चेंज नहीं हुआ, ना ही आर हुआ, तो इंड्यूस्ड चार्ज रिमेन्ड सेम। सो दिस वाज लवली। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा नंबर है वो पुस्तिका में से देख के पता चलेगा। पुस्तिका तक पहुंचने के लिए मुझे 4 कदम लेने पड़ेंगे, पर उससे पहले बोर्ड तो रब करना पड़ेगा ना चचा। ओके रेडी, हम रेडी। ओके SP1 हो गया, SP6 हो गया, 3 हो गया। आओ पलट दें। राउंड 1 का 6 नंबर रेडी हमारे लिए। राउंड 1 का 6, व्हाट डज इट से? अ स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर, स्क्वायर है, L मीटर है, लाइज इन द XY प्लेन। ओ XY प्लेन मतलब उसका एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन, दैट विल बी Z एक्सिस। सो एरिया वेक्टर अलोंग Z एक्सिस, याद रखिएगा, तुरंत देख के पता चलता है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B बार इज B0 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप टेस्ला। B0 is a constant, okay? The magnitude of flux passing through the square is, oh right, sir, magnitude of flux। अच्छा भाई, सबसे पहले एरिया वेक्टर तलब कर लें। एरिया वेक्टर इज, भाई एरिया वेक्टर इज एरिया
इंटू कौन सा कैप भाई, जेड एक्सिस मतलब के कैप, एंड स्क्वायर है एल इंटू एल, एल स्क्वायर के कैप, एंड फ्लक्स, माई नेम इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी बार डॉट ए बार, बी बार ये रहा बी जीरो समथिंग समथिंग 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। भाई आपको पता भी हो ना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखा था, फिर से एक बार देख जरूर लेना, इट ऑलवेज पेज टू बी डबली श्योर। भाई बचपन की बातें, आई कैप डॉट के कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट के कैप 1, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, क्या क्या बचा, b0 बचा, 4k कैप बचा, एंड एल स्क्वायर के कैप बचा, एंड के कैप डॉट के कैप तो 1 है ही, तो 4b0 एल स्क्वायर, भाई के कैप नहीं आएगा अभी यहाँ पे, वेबर। आई थिंक दिस शुड बी आवर आंसर फ्रॉम द आइडिया, यस दैट इज करेक्ट, 4b0 एल स्क्वायर, यस यस एब्सोल्युटली। ओके, अब मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 19, तो उड़ाएगा पड़ी भाई, उड़ाएगा पड़ी राउंड 1 का। अरे आपको देखना था, मैं देखने ही नहीं दिया यार, ये जल्दी करने की जो आदत है ना, वो गंदी आदत है, उड़ा देता हूं मैं रुकूंगा, डोंट वरी, मैं आपसे रुकूंगा थोड़ा सा। राउंड 1 का 19 की कह रहे हैं सम, द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू अ 200 ओम गैल्वानोमीटर, अच्छा और गैल्वानोमीटर 200 ओम है, कनेक्टेड टू अ 400 ओम सर्कुलर कॉइल, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 400 ओम, पता नहीं क्या चाह रहा है, of 1000 turns, n is equal to 1000 turns, okay, wound on a wooden stick 20 mm in dia, so dia is 20 mm, लगे हाथ तो रेडियस भी कर लेते, रेडियस इज 10 mm, ओके, जरूरत पड़ेगी अपने को। If a magnetic field B is 0.012 Tesla parallel to the axis of the stick is suddenly decreased to 0, अच्छा तो ये B1 है and magnetic field B2 is now decreased to 0, अच्छा ऐसे आ रहे हो, कितना फ्लक्स है ऐसा पूछा है, ओके, कितना चेंज इन फ्लक्स नहीं, क्या पूछा है, चार्ज, हाँ, जब तक पता नहीं चलता तब तक कदम नहीं आगे बढ़ा सकते, चार्ज मांगा है तुम्ही से, ओके, चेंज चार्ज, भाई इंड्यूस चार्ज का इक्वेशन याद है आपको, डेल्टा क्यू इज एन डेल्टा 5 बाय आर, डेल्टा 5 2 माइनस 5 1, ओके, चलो ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हैं, शुरू करना है तो इसी वक्त शुरू कर सकते हैं। इनिशियल फ्लक्स phi1 is b1a cos 0 एंड फाइनल फ्लक्स, एंगल में कोई बदलाव नहीं है, सेम ही है, cos 0 b2a। भाई एरिया अपने को मालूम नहीं है पर रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, so this is b2 pi r square, this is how the entire thing is going to work out। so अब आगे बढ़ते हैं, change in flux, delta phi is phi2 minus phi1, भाई b2 जीरो है, कहां गया, हाँ जीरो, तो it is minus b1 pi r square, एंड नाउ इंड्यूस चार्ज, मैं सब कुछ एक ही इक्वेशन में डाल के फिर आंच को तेज करके पका लूंगा उसको। सो डेल्टा क्यू, मुझे लगता है पेन चेंज करने की आवश्यकता आन पड़ी है सर, तो सारी आवश्यकता यही आन पड़ती है। सो डेल्टा क्यू इज एन डेल्टा फाई बाय आर, तो डेल्टा फाई कितना है, माइनस b1 पाई आर स्क्वायर, माइनस को गोली मारो बाय आर। तो अब इक्वेशन को डालना शुरू करो, क्या हो रहा है क्या नहीं, आओ देखें, तो जस्ट चेक इट आउट। So we are on it, n 1000 10 raised to 3, b1 0.012, ये कितना गंदा नंबर है, so 12 into 10 raised to minus 3 pi 3.14 and radius 10 mm, that's 10 into 10 raised to minus 3, that's 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 2 का square and the whole over resistance। अरे भाई रेजिस्टेंस टोटल मारना पड़ेगा, RC प्लस RG 400 प्लस 200 600, तो 6 into 10 raised to 2, ओके, 10 raised to minus 3 प्लस 3 उड़ेगा,
6 2s are 12 हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू क्या बचा, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 एंड ये 10⁻². सो -4 -2 -6, सो 6.28 into 10⁻⁻6 कूलम. Let us check whether something like that हमारा आंसर है क्या. 6.3 माइक्रोकूलम. यस सर, 3 bags full. ऐसा बचपन में गाना सुना था. सो एकदम सही, चकाचक काम चल रहा है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक मोशनल ईएमएफ की बातें करते हैं. भाई मोशनल ईएमएफ, द ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मोशन is called motional EMF. And to be very candid, आपके साथ एकदम कैंडिड ही रहता हूं मैं. अगर किसी रॉड को, सपोज ये रॉड है and it is moved with a velocity v in this magnetic field, let us say, which is going inside the plane of the paper. मैंने फिलहाल कोई यू शेप फ्रेम या ऐसा कुछ रखा नहीं है, तो ये वी बार अंदर जा रहा है, तो यू विल सी दैट इस रॉड के दोनों एंड्स पे एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. सो इफ दिस लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, then the motional EMF which has been induced due to the motion of this rod in this magnetic field is given as, motional EMF is epsilon is BLV या minus BLV, whatever be the case. सही है आंसर, तो BLV ये है उसका. अच्छा, किस तरह हुआ ये? This has been possible due to a very important force called Lorentz force. लॉरेंट्ज फोर्स आपको याद तो होगा, F bar is Q V bar क्रॉस B bar. सर क्यों ये उड़ा दिया, मेरे को इतनी जगह चाहिए थी. लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वेशन था F bar was Q V bar क्रॉस B bar. In short, whenever a charge Q is moved in a velocity V bar in a magnetic field V bar, this force acts on it. तो यहां पे सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज मैं फिलहाल पकड़ रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी दिस V बार, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो V बार क्रॉस V बार कैसा होगा, ऊपर. सो पॉजिटिव वाले चार्जेस ऊपर की ओर प्रयाण करेंगे, नेगेटिव वाले नीचे. सो दिस कम्स टू बी अबाउट समथिंग लाइक दिस. यू नो, ये बड़ा सा रॉड बनाया मैंने, सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएंगे, thus giving the upper part of this rod a net positive potential. नेगेटिव वाले नीचे होंगे, thus giving the rod net negative potential. आप देखें ऊपर पॉजिटिव हो गया है, नीचे नेगेटिव. सो दिस इज लाइक ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे नेगेटिव टर्मिनल, EMF epsilon which is BLV. So all this has happened due to Lorentz force. And I'm sure you remember, for Lorentz force to work, if V bar parallel to B bar, then force F is QVB sin theta will be 0, because sin 0 is 0. So induced EMF के लिए it is absolutely essential कि V bar और B bar parallel ना हो. अगर V bar और B bar parallel हुए तो भूल जाओ, induced EMF नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ना कोई ऊपर जाएगा ना कोई नीचे. तो अगर फोर्स ही नहीं होगा तो कैसे वर्कआउट होगा. सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स. यू कैन ऑल्सो डू इट यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल. तो सर क्या है राइट हैंड पाम रूल? अच्छा दिखाता हूं. ये मैंने राइट हैंड की पाम को फेस अप रखा हुआ है. राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि अगर थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तुम्हारी फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रही है, तो the upper palm, the upper part of the palm will indicate positive direction and lower part will indicate negative direction. यहां से दिखाई दे रहा, कैन यू सी, ये जो बार है वो इस डायरेक्शन में आगे जा रहा था, मेरे थंब के डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अपर पार्ट इज पॉजिटिव एज यू कैन सी हियर, लोअर पार्ट इज नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल. ऑलराइट, सो राइट हैंड पाम रूल में अपनी राइट पाम को ऐसे रख दो. अगर थंब इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी, फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो द अपर पार्ट ऑफ द पाम इंडिकेट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी,
lower part of the palm indicates the negative terminal of the battery. और हमेशा याद रखना, please be careful, velocity और b bar parallel ना हो. पैरेलल हो तो लॉरेंट्ज फोर्स नहीं होगा, EMF भी नहीं होगा. Also, let me give you a small tip. If a rod of length L is rotated with angular speed omega in a magnetic field B bar which is going inside, then induced EMF, मैं इस साइड को ले लेता हूं, then induced EMF it's a very beautiful idea. Epsilon is omega b L square by 2. So ये तुम्हारा रॉड है, you know this is centered and this is L and this rod is rotated on a circular path. ये सर्कुलर लग नहीं रहा, अंडी ऐसा लग रहा है, बट फिर भी ओके ये तो और खराब लग रहा है, ये इस तरह है. और मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है. परपेंडिकुलर होना अति आवश्यक है, नहीं तो वर्कआउट नहीं होगा. सो ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2 मेरा इक्वेशन है फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रॉड एल. अब इसको यूज करके थोड़ी और चीजें करते हैं. आओ चलो, लेट्स गो ऑल्टो, लेट्स गो. मैं करने जा रहा हूं, मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया, अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगा. अच्छा, नंबर कौन सा है? ये नंबर बड़ी जरूरत चीज वाली है. SP8 है, और SP8 में कुछ बड़ा नंबर है, कुछ बहुत सारी बातें लिखी है. 2 parallel rails with negligible resistance are 10 centimeter apart. Okay, they are connected by a 5 ohm resistor. तो ये पहला रेल है, ये दूसरा रेल है, एंड बीच में 5 ohm रेजिस्टर है. ओके, कहाँ गया? The circuit also contains 2 metal rods having resistance 10 ohm and 15 ohm. तो मैं ब्लैक कलर में रॉड्स बनाता हूं ताकि पता चले रोड है. ओके, ये कुछ अजीब सा रॉड है, बट है. ये कितना ओम का है? ये 10 ओम का है. और ये जो रॉड है ये 15 ओम रेजिस्टेंस है इसका. ओके, क्या है? और द रॉड्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम द रेजिस्टर, मतलब इसको यहां से खींचा जा रहा है, इसको यहां से खींचा जा रहा है. ऑलराइट, एट कांस्टेंट स्पीड्स 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड. तो जो 10 ओम वाला है वो 4 मीटर पर सेकेंड, ये वाला है 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बार 0.01 टेस्ला इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स, मतलब अंदर जा रहा है. ओके, तो ठीक है, सब बरोबर है. डिटरमाइन द करंट इन द 5 ओम रजिस्टर. ओके, अच्छा कोई नामकरण है? ये C है, ये D है, ये A है, ये B है, ये E है, ये F है. ओके, नाउ कुछ भी करण तो पहले look at rod EF. Can you see this rod EF is I think 10 centi? 10 centi. This is 10 centi. That's 0.1 meter. ये भी वही है 0.1 meter. It is moved with a velocity 2 meter per second in this direction. And मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया, पर मैं बना दूंगा. ये अंदर जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ दिखाने के लिए मैंने अंदर बनाया, बाकी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बताओ. ये रॉड इस वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. मैं राइट हैंड पाम रूल लगाऊंगा तो अंगूठा डायरेक्शन वेलोसिटी का बता रहा है, ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है. तो इस रॉड में अपर पार्ट पॉजिटिव होगा, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होगा. सो फॉर EF, फॉर रॉड EF, मैं पहले EMF निकाल लूं. एप्सिलॉन 1 बोलता हूं इसको, BLV1. तो B कितना है? 0.01, that's 10⁻⁻². Length is 0.1, that's 10⁻⁻1, and V1 is 2. So 2 into 10⁻³ वोल्ट. एंड इसी प्रकार मैं फॉर रॉड AB निकाल लेता हूं. पहले निकाल लो फिर डायरेक्शन बता दूंगा. एप्सिलॉन 2
is BLV2, B 10 is to minus 2, length 10 is to minus 1 and velocity is 4. So 4 into 10 is to minus 3 volt. हमें नया सर्किट बनाने की अत्यंत जरूरत पड़ी. इसमें कैसे लगाओगे सर पाम रूल? ये है ना, पर रॉड तो यहां जा रहा है इस तरफ. कैन यू सी? रॉड ये इस तरफ हो गया, तो नेगेटिव किधर है? जो मेरा टॉप ऑफ द पाम है वो नीचे की तरफ है, मतलब इसका पॉजिटिव नीचे की ओर होगा, नेगेटिव ऊपर की ओर होगा. सर्किट दिखेगी कैसे, इसी वक्त बनाया जाए. ओके, तो इसका फिर मैं कर्कऑफ लगाऊंगा. ये तुम्हारा 5 ओम है और मैंने क्या कहा था, इसका पॉजिटिव नीचे की तरफ है ना, सो पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर, एंड रेजिस्टेंस है 10 ओम. एक अच्छा सर्किट बन जाए ना तो फिर कर्कऑफ लगा करके मैटर को क्लोज करेंगे. और इसका पॉजिटिव ऊपर था, यस. और रेजिस्टेंस आप कहीं भी बना सकते हो, नॉट एन इश्यू एट ऑल. थोड़ा नीचे बनाए, अच्छा लगेगा. एंड दिस इज 15 ओम, सॉरी. एंड दिस इज हाउ मच? ये पहला वाला EF का कितना है? 2 into 10 is to minus 3. This is epsilon 1 and this is 10 ohm and this is epsilon 2 which is 4 into 10 is to minus 3. ओके, नामकरण जरूरी. आंसर तो कर्कऑफ से ही आएगा, पर पहले सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर लें. कुछ बचा तो नहीं. EMF आ गया, ये वाला ऊपर था बराबर पॉजिटिव, ये वाले का पॉजिटिव नीचे था. ओके, दिस इज 10 ओम, दिस इज 2 into 10 is to minus 3, this is 15 ohm, this 4 into 10 is to minus 3. We are all good. बस मुझे करंट चाहिए. तो भाई कर्कऑफ, तो कर्कऑफ ने क्या कहा था? बड़ी बैटरी ढूंढो. दिस इज 4 into 10 is to minus 3, दिस 2 into 10 is to minus 3. बड़ी कौन? ये वाली. तो इसमें से करंट निकालता हूं मैं. चलो, लेट मी कॉल दिस करंट I. यहां से करंट निकला, यहां गया. दिस इज अ जंक्शन, तो यहां से धीरे धीरे I1 यहां जाएगा एंड I minus I1. वी आर वेल वर्स्ड विद ऑल दिस. I minus I1 यहां जाएगा, दिस I minus I1 गया 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 गया, यहां आया फिर से. ये I1 उसको यहां मिला, ये I minus I1 था, और ये I वापस सर्किट के नेगेटिव में आ गया. वी आर ऑल गुड. सो वी हैव गॉट 2 अननोन्स, I एंड I1. तो मेरे को 2 इक्वेशन लेने पड़ेंगे, 2 लूप लेने पड़ेंगे. ओके, तो लेट्स डू इट. पहला लूप लेते हैं BDCAB. ओके, KVL, दिस विल हेल्प टेकिंग दिस ऑल ऑफ. स्टैंडर्ड कर्कऑफ, नो इश्यूज. KVL टू लूप, क्या नाम दिया था? BDCAB. BDCAB. लेट अस स्टार्ट. कुछ नहीं. इन द डायरेक्शन -5I1. कुछ नहीं. इन द डायरेक्शन -10I. करंट I है यहां पे. एंड बुरे से अच्छा इज अच्छा, सो +4 into 10 raised to minus 3 is 0. So what does my equation become? ये -5I1 -10I वो साइड ले लूंगा. So 5I1 plus 10I is 4 into 10 raised to minus 3. This is my equation number 1. Now KVL to second loop. DCEFD. Okay, D से शुरू करो. In the direction -5I1. चिक. अच्छे से बुरा is बुरा. And opposite to the direction, तो +15 I minus I1 is equal to 0. वापस आ गए. ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं. लेट्स ओपन अप. -5I1 -2 into 10 raised to minus 3 plus 15I minus 15I1 is equal to 0. -5I1 minus 15I1, that's -20I1 plus 15I, and this -2 into 10 raised to minus 3 comes this side. तो माइनस को हटाना चाह रहे हो क्या? हटा देते हैं यार, क्या फर्क पड़ेगा. पर ठीक है यार, ये -20I1 plus 15I रखो ना. सही है, ये सही है.
कहाँ किसी का दिल दुखाए, ये 2 है और ये 1 है। अब आई नीड टू टेक आउट व्हाट, आई नीड व्हाट, I1, सो आई नीड टू टेक आउट I। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से, और इसको 4 से। 15 4 जा 60 एंड 10 6 जा 60, तो 6 5 जा 30 I1 प्लस 60 I and 4 6 are 24 into 10 is to minus 3. I hope you are agreeable with my multiplications. 24s are 80 I1 and 15 4s are 60 I is 2 4s are 8 into 10 is to minus 3. You need to subtract. 60 I minus 60 I goes away. 30 minus 80 is 110 I1 and 24 minus 8 is what, 16. Okay, so what do we have? I1 is 16 by 110 into 10 raised to minus 3 ampere. Do they want us to, simplify further? ये 8 से जाएगा, ये 55 से जाएगा. So, I think that is the answer that they want. So, I1 is 8 by 55 into 10 raised to minus 3 milliamp from D to C. I think they also have asked the direction. 8 को क्या काटा है मैंने, आपके ऑनर में काट दिया मैंने. 8 by 55 milliampere from D to C. Yes sir, that is the answer. एकदम मस्त भाई, अपना वर्किंग है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट देख लो, देखना है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं. तब तक मैं नंबर देख लेता हूँ, कौन सा नेक्स्ट नंबर है. एग्जाम्पल 7 है. ओके, फिर राउंड 1 का 7 है. ऑलराइट, एग्जाम्पल 7 राउंड 1 का 7. मैं रेडी हूं. अच्छा, मैं 2 घूंट मार लेता हूं. पानी की है भाई. आई एम बैक. आई एम श्योर आपने देख लिया टू योर हार्ट्स कंटेंट. तो कंटेंट ओके. तो क्या कहता है एग्जाम्पल 7, क्या है ये, व्हाट डज इट से. ओके, एग्जाम्पल 7, let's see. It says an airplane with 20 meter wing spread, so length of the wingspan is 20 meter, is flying at 250 meter per second. Okay, straight south parallel to the earth's surface. Okay, the horizontal component of the earth's field, so this He is 2 into 10 raised to minus 5 Tesla, and the dip angle I is 60 degree. Calculate induced EMF. ऑलराइट भाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई. जो तुम्हारा प्लेन है वो इट इज फ्लाइंग साउथ, नहीं फ्लाइंग स्ट्रेट साउथ. यस, फ्लाइंग स्ट्रेट साउथ. प्लेन उड़ रहा है ऐसे, सपोज ये साउथ है, ये नॉर्थ है पीछे मेरे. प्लेन उड़ रहा है ऐसे, एंड तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्टेड साउथ टू नॉर्थ. Plane going like this, horizontal component like this. क्या इस वेलोसिटी के साथ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा? नहीं, क्योंकि ये पैरेलल एंटी पैरेलल है. ऐसा या ऐसा, पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है. इसमें थीटा इज 0 या 180, तो इसमें लॉरेंस फोर्स लगेगा ही नहीं. यू नीड टू लुक एट समथिंग विच इज परपेंडिकुलर. वर्टिकल कंपोनेंट देगा. इज दिस वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? Yes it is. So अपना आइडिया He नहीं है, ZE है. ओके, तो सबसे पहले ZE फाइंड आउट करो यार. We know, I'm sure we know, tan phi, tan I. सर क्या भाई, किसी किसी जगह पे phi कहते हैं, किसी किसी जगह पे I कहते हैं. Is ZE by He. तो how much is ZE? It is He into tan 60. I 60 है ना, इक्वेशन नंबर 1. So induced EMF एप्सिलॉन इज BLV, और B की जगह ZE LV, एंड ZE इट इज He tan 60 into L into V. भाई सब्सटीट्यूशन का तो करना ही पड़ेगा. He 2 into 10 raised to minus 5, and tan 60 is √3. अब √3 को 1.7 लगा दूं या बाद में देखें, चलो देखते हैं. लेंथ इज 20 and velocity is 250. Okay, so 250 2s are 500. 500 into 20
500 into 20, 500 into 1000, 10,000. Oh, 10,000, my God. Root 3 ऐसे ही रहा. 1.73 into 10 is to minus 5. 10,000 is 10 is to 4. So this 10 is to minus 1. 0.173, I guess, should be the answer. 0.173 volt, I think, should be the answer. The answer should be yes. Yes, sir, it is the answer. अच्छा, राउंड 1 का 7 भी लगे, हाथ तो छोटा सा है, यहीं कर लेते हैं, तो लोड ही नहीं कोई. ओके, राउंड 1 का 7 की कहता है. ऐसा पहले डायग्राम बना देता हूं. और ये रॉड है और इस तरफ मूव की जा रही है. एंड ये पी है, पता नहीं पी क्या है. मैं पहले करंट की दिशा बना दूं. करंट की दिशा लाइक दिस, ऐसा कुछ है. अब डेटा देख लेते हैं क्या कहता है. अ मूवेबल वायर इज मूव टू द राइट क्रॉसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट. अच्छा, करंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लाल कलर के एरोस. द डायरेक्शन ऑफ बी बार इन द रीजन पी पॉइंट्स. अच्छा, बी बार किधर है वो देखने का. मुझे लगता है अपने को अपना वो यूज करना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, राइट पाम रूल. अंगूठा वेलोसिटी दिखा रहा है. अब सबसे पहले तुम्हारा करंट ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, बराबर है ना, बराबर है. एंड मतलब करंट यही फ्लो होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस. अगर तुम्हारा ये टर्मिनल पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो करंट ऐसा ही फ्लो होता ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, बराबर. सो दिस हाउ इट इज. तो आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड शुड गो इनसाइड. सो वेलोसिटी अंगूठा बाहर की तरफ दिख रहा है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, मतलब करंट यहां फ्लो करेगा. करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लाइक दिस. सो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, अंदर की तरफ. सो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. भाई पेपर नहीं हमारे पास, पर ये भी पेपर जैसा ही है. सो इट इज गोइंग इनसाइड. क्रॉस, हमारा डायरेक्शन क्रॉस का है. डज इट मेक सेंस? यस, गोज डाउन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. एब्सोल्युटली. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. पहले करंट देख लो किस तरफ है. हाँ, पहले मैंने अंगूठा देख लिया क्योंकि मुझे अंगूठा नजर आ रहा था. फिर मैंने देखा करंट किस तरफ है. अगर करंट उल्टा होता तो ना, ये इस तरफ है ना, तो ऐसा कर लेता मैं. मैं ये अंगूठा चेंज नहीं करता, मैं ऐसा रख लेता. तो अगर करंट नीचे की तरफ होता तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाता. एज सिंपल एज इट गेट्स. सो दिस इज हाउ द आइडिया वर्क्स. तो ये हुआ हमारा मोशनल ईएमएफ के फंडे. आगे बढ़ जाते हैं एंड सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा देख लेते हैं यार. सेल्फ इंडक्टेंस मजे का टॉपिक है. सेल्फ इंडक्टेंस की बातें हम करेंगे. कोई भी कॉइल होती है. सपोज दिस इज वेरिएबल बैटरी and I have connected it to this coil. Now when current flows through this coil, everybody knows this. This current, this is a variable current, it might change. It creates a magnetic field, and the magnetic field produces flux which links with the turns of this coil. Alright, so that is the most important idea, कि flux linked with the turns of the coil is dependent on the current. जितना करंट बढ़ेगा उतना फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा. So the flux, the magnetic flux linked with the turns, if flux phi is the flux linked with each turn, then by total flux will be n phi, then n phi will be proportional to the current I. Alright, जितना करंट ज्यादा उतना फील्ड ज्यादा, फील्ड ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा. So let me introduce a constant of proportionality. n phi is Li. अब क्योंकि तुमने करंट को चेंज किया हुआ लिया है तो I'll call it small I. आप बड़ा भी कह सकते हो, not a big issue. Okay, this L is called the coefficient of self inductance of the coil. ओके, एंड अब मैं क्या करूंगा, जब करंट चेंज होगा, यू अग्री फ्लक्स चेंज होगा, एंड वेन एवर फ्लक्स चेंजेस EMF is induced. This EMF is induced in the coil itself. That is why it is called self-induced EMF या back EMF. So when
current changes, flux changes, and EMF is induced in the coil. An equation for self-induced EMF. I'm cutting a long story short. You can also call it back EMF. You know, epsilon is minus n d phi by dt. Is it same as L di by dt? Epsilon is minus L di by dt. And this EMF, as I said, is also called back EMF. Now, L का जो SI unit है, it is Weber per ampere according to this equation, or volt second per ampere according to this equation, or it is better known as Henry. It is better known as Henry. The structures. Yeah. I got it all perfect. Yeah. Let's see. It's called Henry. A device that possesses the property of self-inductance is called an inductor. So, ये है आपका इंडक्टर. L कहते हैं इसको. जो साइड से करंट एंटर करता है वो साइड पॉजिटिव होती है, जो साइड से करंट निकलता है वो साइड नेगेटिव होती है. इंडक्टर आखिर करता क्या है सर? इंडक्टर अपोज किसको करता है? रेजिस्टर अपोजेस करंट, बट इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट इन द कॉइल. ऑलराइट, तो इस करंट चेंज होता है, वो चेंज को अपोज करने का काम करता है इंडक्टर, मच लाइक मास इन इनर्शिया एंड ऑल दैट स्टफ लाइक दैट. सो दैट इज द होल आइडिया. ऑल्सो एन इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हमारा तूफान चालू ही है, U is half Li square. So U, energy stored in an inductor, is equal to half Li square. आप I को बड़ा लिखना चाहते हो, be my guest, no issues at all. So half Li square is the energy stored in an inductor. Also in series, अगर दो इंडक्टर सीरीज में लगे हैं, you already know this. This is L1, this is L2, then Ls is L1 plus L2, and in parallel इनके इक्वेशन रेजिस्टर के जैसे ही है. क्या फूल बना दिया. सो ये L1 है, ये L2 है, देन 1 by LP is 1 by L1 plus 1 by L2. तो दिस इज द आइडिया फॉर इंडक्टर्स. अच्छा, सॉलिनॉइड पे भी इंडक्टेंस होती है, सॉलिनॉइड में भी इंडक्टेंस होती है. कितनी होती है मैं आपको बता देता हूं. मैंने पहले सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, फिर नेट फ्लक्स फाइंड किया, एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज phi by I, टोटल फ्लक्स ओवर करंट. और उस तरह मुझे सॉलिनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस मिल गई. फॉर अ सोलेनॉइड सेल्फ इंडक्टेंस L is mu naught n square A by L. If you are talking about the total number of turns, that is bada N, then it is mu naught bada N square A by L. And अगर आप number of turns per unit length की बात करते हो तो it is mu naught छोटा n square AL. So do I need to write here छोटा n is number of turns per unit length, and n is the total number of turns. Check this out. So ये वाला काम हमें करना है, सेल्फ इंडक्टेंस वाला. आई एम श्योर आपने देख लिया है, तो मैं इसको उड़ा देता हूं. और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो अलग हैं थोड़े, उनको चेक कर लेते हैं क्या कहता है, क्या न्यूमेरिकल्स हैं. सो कहां गई पुस्तिका? ये रही. ओके, SP9 कर रहा हूं मैं. व्हाट डज SP9 से? एन इंडक्टर इज एन इंडक्टेंस ऑफ 0.54 हेनरी. ओके, सो 0.54 हेनरी एंड कैरीज करंट इन द डायरेक्शन शोन. अच्छा, डायरेक्शन भी शोन है. अच्छा, ये A है, ये B है, और किस तरफ जा रहा है करंट? इस तरफ है. ओके,
एंड इट इज डिक्रीजिंग, ओ माय गॉड, डी आई बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस, अच्छा माइनस दिया हुआ है 0.03 एम्पियर पर सेकेंड. द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ओके. उनको सिर्फ ईएमएफ से इंटरेस्ट है, उनको डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई दरकार नहीं है. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ dos gardenias para ti माइनस एल डी आई बाई डी टी. अब डिपेंड करता है जी, देखो अगर आप बी से ए आ रहे हो ना, तो यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ईएमएफ इज नेगेटिव, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी. अगर ए से बी जा रहे हो तो यू आर गोइंग ऑपोजिट, तो प्लस ले लेंगे. एक आध न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें करेंगे, अभी फिलहाल तो यहां पे सिर्फ रखना ही है. डी आई बाई डी टी -3 इंटू 10 रेज टू -2. 0.0 से हमेशा बहुत डरता हूं मैं. 54 3 अबे 53 150 162, सो 1.62 इंटू 10 रेज टू -2 वोल्ट. भाई क्या आंसर विंसर कुछ सही है कि नहीं, कि 16.2 चाहिए? नहीं, 1.62 सही है भाई. ओके, इस एसपी के बाद डीआईजी आएंगे क्या? एसपी 10 आएगा. अच्छा, सुपरिंटेंडेंट पुलिस आए फिर डीआईजी आने चाहिए. क्या कहते हैं? इन द सर्किट शोन, पहले सर्किट बना ले. ओके, थैंक यू. बोले आपने हाँ नहीं बोला, मैंने बना दिया. रेजिस्टर है, इंडक्टर है एंड बैटरी है. ओके, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज आर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, दिस इज एल, अगेन आई, एंड दिस इज एप्सिलॉन. अच्छा, अभी वैल्यूज मिलेगी कुछ. आर इज 10 ओम, एल इज 5 हेनरी, एप्सिलॉन इज 20 वोल्ट, and I is 2 amp. Okay, thank you. And current is decreasing. Okay buddy, decreasing. Di by dt is -1 ampere per second. Find VAB. अच्छा, potential difference between A and B. Alrighty buddy. KVL comes to our rescue. Absolutely. KVL from A to B. तो A से शुरू करते हैं. A पे पोटेंशियल कितना है? VA. In the direction of current, IR is negative. In the direction of current, तो minus L di by dt is also negative. अच्छे से बुरा is बुरा and that is equal to VB. हमेशा याद रखना, इसको इंडक्टर की तरह, इसको रेजिस्टर की तरह ही ट्रीट करना. इन द डायरेक्शन करंट जा रहा हो तो नेगेटिव, और जो मैंने लिखा है इस तरफ. अब di by dt डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है पता नहीं, जैसा होगा वैसा लगा देंगे. अगर इंक्रीजिंग होता तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होता, डिक्रीजिंग है तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव है. अंदर जाएगा जलवा दिखाएगा. आई कितना है? 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 10, एल इज 5, डी आई बाई डी टी इज -1. ओके, एप्सिलॉन इज 20. लेट्स सी वेयर दिस स्टोरी एंड्स. 10 2s are 20, minus minus plus 5 minus 20 is VB. -20 minus 20 is -40. -40 plus 5 is -35. So VA minus 35 is VB. तो VB को ये साइड लूं, -35 को वो साइड लूं. So my answer VA minus VB, which is VAB, is 35 volt. What say? Is that correct? Tetto corretto. शाबाश. चेक कर लो, एक सेकेंड, दूसरा सम करता हूं. ऑलराइट, आई एम बैक. SP16 करना है, पर इससे पहले कि SP16 करें हमको ये बोर्ड रब करना पड़ेगा. तो आओ करें बोर्ड रब. मैं दर्दी रब रब कर दी रे, मैं दर्दी रब रब, मैं दर्दी रब रब कर दी रे, मैं दर्दी रब रब. आई एम सीरियसली मिसिंग दलेर मेहंदी बाजी. ओके, नो प्रॉब्लम्स. डू यू इवन नो दलेर मेहंदी? आई मीन at my time he was the rock star. हर गाने सुना. Okay. Self inductance of a coil having 200 turns. अरे भाई 200 turns है. is कितना है? 10 millihenry. Okay. The magnetic flux through the cross section of the coil corresponding to current 4 milliampere. And they need the flux per turn. हाँ, ध्यान रखिएगा, उन्होंने लिखा नहीं है. They need the flux per turn. Okay.
Alright, let us see how much it goes. सबसे पहले we know n phi, this is the flux per turn, is Li. So phi is Li by n. L 10 milli. It was a pretty easy sum. 4 milli. अरे बाप रे, ये 10 मिली में -2 कैसे लगा दिया सर? हाँ, ऐसा मिली, ऐसा मिली तो ऐसा करने का. अच्छा भाई, 4 10s are 40, 40 by 2 is 20 into -3 -6 -2 -8. अरे राम कृष्ण, ऐसा कुछ आंसर है कि 20 into 10 is to हाँ 2 into 10 is to -7. So flux is 2 into 10 raised to -7 Weber per टर्न. मस्त. आगे बढ़ जाते हैं. कुछ और नंबर है क्या हमारे पास? अरे नंबरों की तो बरबार है, नंबर कम ना होंगे. राउंड 1 का 33 है, तो लगे हाथों अगर जगह मिले, जहां दिखी तरी वही बिछा दी दरी. व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर सोलेनॉइड? 1 मीटर लेंथ है इसकी. ओके, एंड डायामीटर, ए शिट, डायामीटर आया 0.05 मीटर, having 500 tons. अच्छा, take pi square is 10. ओके भाई, सबसे पहली बात, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सुल्लू सोलेनॉइड, इक्वेशन तो याद होगा. L भाई बड़ा n है ना, तो पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं. म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l, ज्यादा अच्छा रहता. एंड n स्क्वायर इंटू एरिया इज व्हाट? पाई. अब डायमीटर दिया ना, डायमीटर पाई d स्क्वायर बाय 4 एंड नीचे l. भाई संभालना, अब सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं. n कितना है? 500. 5 इंटू 10 रेज टू 2 का स्क्वायर, दैट्स 25. अच्छा, पहले 5 इंटू 10 रेज टू 2 का स्क्वायर लिख दो ना, शांति से. एक और स्टेप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. इंटू पाई, डायमीटर 0.05, दैट्स अगेन 5 इंटू 10 रेज टू -2. So 5 into 10 is to -2, the whole square again, upon 4. How much is your length? 1 meter. Okay. अच्छा, pi square, gentlemen. ये 4 को काट दो ना. ओके, नो प्रॉब्लम, काट दिया, जान हाजिर है. Into 10 raised to -7. Now let's go slow. Let's take it steady. 25 into 10 raised to 4. 25 into 10 raised to -4. Wow, man. I think this is 625, 25, 625. This is 10, and it's 10 is to -7. 10 and 10 is to -7 is 10 is to -6. So 625 into 10 is to -6 Henry. I think that would be 6.25 into 10 is to -4. Yeah, that is how they want it. So L is 6.25 into 10 raised to -4 Henry. Okay. तो दिस वॉज द आइडिया. मैं उड़ा रहा हूं बोर्ड, चेक करें. मैं कुछ 1-2 और सम करना चाहता हूं, मिसलेनियस. आई एम श्योर देख लिया आपने. तो उड़ा देते हैं. लेंस लॉ का एक एप्लीकेशन है मेरे हाथ में, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा. लेंस लॉ, ये है नंबर राउंड 2 का 3 है भाई. 3 ही है ना? हाँ, 3 ही लग रहा है. अच्छा, ये एक फ्रेम है. लाइन सीधी ना हो तो मजा नहीं आता. और यहां से okay, what does this look like? This is C, this is D, this is B, this is A, and magnetic field is going inside. पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड को अंदर बना दूं, फिर देखें क्या करना है. अपना सब कुछ सही है. Okay, this is B bar as indicated. क्या कह रहा है? Conducting wire frame is placed in a magnetic field directed into the plane of the paper. Okay, the magnetic field is increasing at a constant rate. Okay, the direction of induced currents in AB and CD are. Okay, what I'm going to do, I'm going to take CD first.
यू नो आई एम गोइंग टू टेक दिस कॉइल एज CD. ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना वो गवर्न करेगा, बट ऑफ कोर्स तो बड़े ट्राइंगल का एरिया वेक्टर जो है वो बड़ा होगा, ये छोटे वाले का छोटा होगा. फिलहाल मैं इसका ही ले रहा हूं. सो पहले थ्रू सेक्शन CD मैं जैसा हमेशा करता था, पहले बी बार का डायरेक्शन क्या होगा, बी बार इज इनसाइड. मैं इस वाले का एरिया वेक्टर भी अंदर चूज कर रहा हूं, ए बार इज ऑल्सो इनसाइड. सो फ्लक्स फाई इंक्रीजेस इनवर्ड्स एंड दे हैव टोल्ड मी, लेट मी कंफर्म अगेन, फील्ड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फील्ड इज इंक्रीजिंग. तो एज फील्ड इज इंक्रीजिंग, एज बी बार इज इंक्रीजिंग, सो फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजिंग. एज ए रिजल्ट हमारा जो अंदर का डायरेक्शन है वो बरोबर है. अब फाइनली बाय लेंजेस लॉ रिवर्स डायरेक्शन, ये नंबर 4 है. बाय लेंजेस लॉ रिवर्स डायरेक्शन. सो लेट मी सी, पहले अंदर जा रहा था, अब लेंस की वजह से बाहर आ रहा है. सो करंट इज लाइक दिस. सो करंट गोज फ्रॉम D to C. देयरफॉर करंट in section CD is what? Anti-clock. Is anti-clock. That is from D to C. अच्छा, this is my key statement. From D to C. And अगर D से यों जाके C में गया तो यहां आके B से A में जाएगा. And from B to A. So they have asked me like this, C to D, D to C. So from D to C and B to A. Absolutely perfect. Alright, you understand this? देख लो इसको एक बार. उड़ाकर मैं करने जा रहा हूं नंबर 21. 21 करेंगे आज नंबर. So just have a look. 21 is coming up. राउंड 1 का, राउंड 2 का है? राउंड 1 का ही है. राउंड 1 का 21 ऑन द डेक फॉर यू. थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाए, टेंशन नहीं लेने का, ग्रेविटी कहते हैं इसको. सो राउंड 1 का 21. लेट्स सी व्हाट इट सेज. ओके, स्क्वायर लूप, साइड कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटी, lying on a horizontal table. Okay, an electromagnet above and to one side of the loop is turned on, causing a uniform magnetic field downwards at an angle of 60 degree to the vertical. Okay जी, अब देखते हैं 60 डिग्री एरिया वेक्टर के साथ है क्या है. बी बार कितना है, 0.05. समथिंग हैपेंड. तूफान आ जाता है कभी कभी. द एवरेज इंड्यूस्ड EMF in loop if the field increases from 0, so 0 to final value, so B1 is 0 टेस्ला and B2 is 0.5 टेस्ला और टाइम इंटरवल कितना दिया है, 0.2 सेकेंड. ओके, एंड डायग्राम कुछ है मेरे पास. ये मेरा कॉइल है, लूप है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर टू द लूप, एंड ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड को ब्लेक में बनाते हैं, ब्लेक. And this is your 60. But do you agree? It's like this. ये कॉइल ऐसा है एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना उसके साथ 60 डिग्री बना है. भाई परपेंडिकुलर ही तो हमारा एरिया वेक्टर है. वाह, सो एरिया वेक्टर के साथ ही 60 डिग्री बन रहा है. वाह. सो एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार इज 60 डिग्री. सो वी आर एब्सोल्युटली गुड. नाउ इनिशियल फ्लक्स phi 1 is B1A cos 60 and final flux phi 2 is B2A cos 60. and turns है क्या, number of turns है, नहीं है, कोई turn ही नहीं है, there is no turn. so average induced, let me confirm, turns नहीं है ना, square loop turns नहीं है. okay, average induced EMF. अब अगर टर्न्स ही नहीं है तो क्या लिखेंगे. ओके, सो डेल्टा phi 2 माइनस phi 1, मैंने सोचा इसी में डाल दूं. सो माइनस बी नहीं, माइनस A cos 60 को बाहर ले, एंड दिस इज B2 माइनस B1. आई थिंक अपने नसीब में सब कुछ डालना यही है. लेंथ इज 5 सेंटी, सो एरिया इज 5 स्क्वायर.
दैट्स 25 सेंटी स्क्वायर. भाई सेंटी स्क्वायर को कन्वर्ट करना भूलना नहीं. 10⁻⁴ cos 60.5. b2 0.5 minus 0. Okay, upon delta t is 0.2, that's 2 into 10⁻⁻1. So minus to ठीक है, we'll cut it off. This is 0.5, this is 0.5, that's 0.25. 0.25 is hateful. It's 25 into 10⁻⁻2. I love to have all the 2's and all on the one side. 25 is 625, and 625 by 2 is 312.5. Okay. -4 -2 -6. -6 plus 1 is -5. So does the answer become 3.125 into 10⁻³ volt? Let me check. And finally हमारा आंसर आ गया. एवरेज एप्सिलॉन is 3.125 into 10⁻³ volt. That's the right answer. एक और सम का मैंने लिख दिया है. राउंड 1 का 23. एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स है. बी दिया हुआ है 4 into 10⁻⁵. θ1 is 0 degree. θ2 is 90. So θ1 initial angle is 0 degree. Final angle is 90. डेल्टा टी दिया हुआ है. एवरेज एप्सिलॉन फाइंड करना. इजी पीजी जापानीजी. फ्लक्स 1 BA cos θ1, phi 2 BA cos θ2. Average epsilon minus n delta phi by delta t. I am expecting you to put your heads into it and find me the answer. कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जैसे आप हमेशा बताते हो. एंड कमेंट सेक्शन में होमवर्क भी आ जाएगा. लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम. म्यूचुअल इंडक्शन करते हैं. सो टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे एट होम, वर्क इट आउट. बाय बाय.